ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی گرفتار۔ شاہ محمود قریشی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا سابق وزیر خارجہ کو سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مذمت۔ انہوں نے کہا کہ امید تھی پی ڈی ایم حکومت جانے کے بعد لا قانونیت ختم ہوگی، اب ایسا لگتا ہے نگراں حکومت سابق حکومت کے ریکارڈ توڑنا چاہتی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو سائفر معاملے میں گرفتار کیا گیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی تصدیق، کہا شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں نامزد تھے، انہیں ایف آئی اے نے حراست میں لیا۔ شاہ محمود قریشی کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا۔ کے ہی معاملے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ نامینیٹڈ تھے اور ایف آئی اے میں سائفر کا کیس چل رہا ہے تو اسی پہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ جو کورٹ آف لا ہے، جو لا کا پروسیجر ہے، وہ اپنا راستہ خود ہی دیکھتا ہے۔ ابھی کورٹ آف لا میں ان کو پریزنٹ کریں گے۔ کوئی ایف آئی آر تھی جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا؟ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ سائفر میں نامینیٹڈ تھے۔ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے یہ الزام درست ہے کہ شیئر نہیں کی گئی ایف آئی آر ان سے؟ تو خود ہی وہ بتائیں گے کہ اس طرح کے پروپیگنڈا ٹولز میں ہمیں نہیں آنا ہے۔ جو لوگ سائفر میں نامینیٹڈ ہیں سب کو گرفتار کیا جائے گا اور کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا۔ انتخابات میں تاخیر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ واضح ہے انتخابات کب اور کیسے ہونے ہیں، 90 دن کی ڈیڈ لائن کو عبور کریں گے تو غیر آئینی ہوگا۔ سی سی آئی کے فیصلے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود نے کہا ایک میڈیا ہاؤس پی ٹی آئی کور کمیٹی کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ شاہ محمود نے تصدیق کی کہ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی دعوت پر گئے، وہاں امریکی سفیر بھی موجود تھے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اور سائفر کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابہام نہیں ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں۔ 90 دن کی ڈیڈ لائن کو اگر آپ عبور کرتے ہیں تو وہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا۔ 90 دن سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے ہم اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ سی سی آئی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کے بارے میں ہمارا ارادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کی کمپوزیشن اور کانسٹیٹیوشن پر بھی ابہام بھی ہے اور غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم اور سوالیہ نشان، اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ڈس انفارمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے تحریک انصاف کو دعوت کی، ملاقات میں امریکہ کے سفیر بھی موجود تھے۔ ہم نے اپنا موقع پیش کیا۔ انتخابات کے بارے میں، سائفر کے بارے میں بات ہوئی، یہ درست نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ خیبر کے علاقے باڑہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، مقابلے میں 2 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا خفیہ اطلاعات پر کارروائی کے دوران فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کی مکمل حمایت کی ہے۔ حملہ کب ہوا؟ آپ کہاں تھے؟ فوری ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آئیں بائیں شائیں نہ کریں، جواب دیں۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سی پی او کی کلاس لے لی۔ جڑانوالہ کے دورے پر کہا پولیس کی ناقص کارکردگی نقصان کی وجہ بنی۔ واقعے کے وقت یہاں تعینات افسران ہی تفتیش کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کرسچن کالونی کے متاثرین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ بولے گرجا گھر پر حملہ ہو تو مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، پاکستان کا آئین پامال ہوا، یہ سنگین غداری ہے۔ شرپسندوں نے قرآن پاک کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کوئی اگر حملہ کرے اس پہ تو مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جہاد کرے حملہ والا۔ برائے مہربانی ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے پہ ہوئی اگر ان میں سے غلط لوگوں نے کیا ان آپ لوگوں کی مدد کریں، سب سے پہلے ہم آپ کی مدد کریں۔ تھینک یو سر۔ یہاں کا سب سے بڑا پولیس آفیسر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ کس لیول کے لوگ آئے ہوئے ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس وہی لوگ تفتیش کر رہے ہیں جو یہاں تعینات ہیں۔ یہ آپ کو باتیں سے خیال نہیں آئی ان باتوں کو؟ ویری اسٹرینج۔ کتنے بجے ہوا یہ واقعہ؟ چلیے 6:15 بجے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں 4 بجے لوگ آئے تھے، آپ کہہ رہے ہیں 6:30 بجے۔ میں آپ کو یہاں کا کہہ رہا ہوں، آپ اس کو اس میں جوڑ رہے ہیں، اس کا ایسے کیا تعلق ہے؟ آپ اس کو اس میں کیوں لا رہے ہو؟
जड़ावाला साने में ईसा नगरी की गरीब मेहनतकश यूनुस मसीह की जमा पूंजी भी लूट गई। कहता है तिनका तिनका जोड़कर 4 बेटियों का जहेज बनाया, लेकिन बुलवाइयों ने सब फूंक डाला। जो कुछ बचा वो लूट कर ले गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज कमरुज़्ज़मा। जड़ावाला के इलाका ईसा नगरी में मौजूद है। यहाँ पर ऐसे भी घर हैं जहाँ माओं ने बच्चियों के जहेज के लिए जो सामान जोड़ के रखा था वो भी लूट लिया गया। इस वक्त ऐसा ही एक मुतासरा घर के सरबरा यूनुस मसीह हमारे साथ मौजूद है। बच्चियों का जहेज बनाया था, कपड़े थे, बर्तन थे, कोई ले गया कोई तोड़ बन गए। बच्चियों ने सामान बनाया था, जेवर जुवर ये सब कुछ लूट के ले गए। मेरे बच्चे दे एक सूट भी नहीं पाने वास्ते बचे, इन्ना के उन्होंने जला दिता। मुतासरीन का एक ही मुतालबा है कि उनकी बहाली के फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। मुल्क भर की खवातीन पुलिस अफसरान का मुतासरीन ने जड़ावाला से इजहार यकजहती पैगाम में कहा मसीही बरादरी के साथ हैं, मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि आपकी बच्चियां गैर महफूज नहीं, मुल्क भर से आई हुई खवातीन पुलिस अफसरान आपके साथ रहेंगी। हंगामा आराई करने वाले 160 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। दहशत गर्दी के 5 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। चर्चेस की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। घरों की तामीर के लिए हुकूमत आपको पैसे देगी। ये मेरी लेडी पुलिस अफसरान है, ये पाकिस्तान के 4 सूबों से आई है और ये यहाँ पर खुद रही है। मैं बलूचिस्तान से हूँ, क्वेटा से मेरा ताल्लुक है। हम इनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। मैं KP से बिलोंग करती हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हूँ, ये बिल्कुल हमारा पार्ट है। मैं सिंध से हूँ, जितने हम मुसलमान पाकिस्तानी हैं उतने ही ये बराबर के पाकिस्तानी हैं। मेरा ताल्लुक KP चित्राल से है, हम इनके साथ है और इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिल जाएगी। मेरा ताल्लुक KP से है कि दुख में बराबर के शरीक हैं। जो नुकसान फिजिकल हुआ है उसको हम पूरा करेंगे, ये चर्च को हम रिपेयर करेंगे। घरों की रिपेयर आप अपने हाथों से करेंगे, पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। जो हुआ उसकी 5 ATA की FIR हैं, 10 और दर्ज करानी है, 10 दर्ज कराइए। 160 बंदे हमने पकड़े। हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्लामाबाद ने कहा है कि दी हैग में कुरान पाक की बेहुरमती के एक और वाक़े की मजम्मत करते हैं। दानिस्ता इस्लामोफोबिक अमल से 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को गहरी ठेस पहुंची। ये पुरअमन बकाए बाहमी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा है। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों को इजहार राय एहतजाज की आज़ादी के तहत नहीं लाया जा सकता। बैनुल-अक़वामी कानून नफरत पर उकसाने की रोकथाम का पाबंद बनाता है। आज़ादी इजहार जिम्मेदारियों के साथ आती है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोके। कुरान पाक की बेहुरमती पर तहफ़्फ़ुज़ात हॉलैंड के हुक्काम तक पहुंचाए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल लाहौर से लंदन रवानगी मुतवक्के है। ज़राए ने बताया मरियम औरंगज़ेब भी शहबाज शरीफ के हमरा बरतानिया जाएंगी। लंदन में नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें होंगी। लंदन में मौजूद साबिक विफाकी वज़रा भी मुलाकातों में शरीक होंगे। नवाज शरीफ ने नून लीग लाहौर की क़यादत को भी लंदन तलब कर लिया। सैफुल मलूक खोकर और सदर यूथ विंग लाहौर मलिक फैसल भी कल लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत में नून लीगी लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के है। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वापसी के हवाले से कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग देगी। सिंध की 10 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब के दौरान गवर्नर कामरान टिसौरी ने निगरां वज़रा से हल्फ लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 10 रुकनी काबीना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को महकमा दाखिला और जेल का कलमदान दिया गया। ईश्वर लाल को महकमा आबपाशी सिंध का कलमदान सौंपा गया है। मुबीन जमानी को महकमा बल्दियात टाउन प्लानिंग और यूनिस ढागा को महकमा फाइनेंस प्लानिंग डेवलपमेंट और रेवेन्यू का कलमदान दिया गया है। डॉक्टर साद न्याज को महकमा सेहत और बहबूद आबादी, खुदा बख्श मरी को माइंस एंड मिनरल्स, बैरिस्टर उमर सुमरो को महकमा कानून, मजहबी उमूर और इंसानी हुकूक का कलमदान दिया गया है। डॉक्टर राना हुसैन को महकमा तालीम और तरक्की निस्वा, डॉक्टर जुनेद अली शाह को यूथ स्पोर्ट्स और सकाफत का कलमदान दिया गया है। अरशद वली मोहम्मद सयाहत और माहौलियात के निगरां वजीर बनाए गए हैं। सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध में निगरां हुकूमत आते ही बड़ी तब्दीली। IG पुलिस गुलाम नबी मेमन को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब पुलिस के अफसर रिफत मुख्तार IG सिंध तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत।
मुझे कहते थे परवेज खटक अकेला है, अब तुम अकेले हो। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक का नौशहरा में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा, नौशहरा में आपका सफाया ना किया तो मेरा नाम बदल देना। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तुम्हारे साथ नहीं, अब हमारे साथ होंगे। जब मैं पीटीआई में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खटक अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। इमरान खान कहता है कि ये सब चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कहता हूँ आज नौशहरा आपके हाथ से निकल गया है और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये काफिला नौशहरा से शुरू हुआ है और ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा और आपका सफाया करके दिखाएंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रानीपुर में पीरों की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जामबख्श होने वाली 10 साल की फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। एमएस नवाब शाह अस्पताल डॉक्टर अकील कुरैशी की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने जुडिशल कमीशन अरकान की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। कब्र कुशाई के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे, मीडिया को करीब न आने दिया गया। बेटी की कब्र कुशाई पर वालिद रो पड़े। फातिमा का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। पोस्टमार्टम से हासिल नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। फातिमा कत्ल केस की तहकीकात भी जारी हैं। तहकीकाती कमेटी के सरबराह एएसपी गंबट नोमान जफर कहते हैं, हवेली में काम करने वाली गाँव की दीगर बच्चियों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। था वो कब्र कुशाई का था, पोस्टमार्टम का था। हर मुमकिन कोशिश की है कि इसको जितना जल्दी हो सके और प्रॉपर तरीके से तमाम कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। बाकी जो इनिशियल प्रोसीडिंग्स थी वो भी कंप्लीट हम कर रहे हैं। साथ साथ मुलजिमा थी, अभी हमें खबर मिली कि उनकी बेल हुई, एविडेंसेस मिलेंगे तो उसके मुताबिक हम फर्दर कार्रवाई करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी बेल रिजेक्ट कराने की तो वो भी होगी। गाँव की दीगर बच्चियाँ भी वहाँ पर काम कर रही हैं, 2 बच्चियों के बयानात भी सामने है, क्या उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आप देखें हर चीज़ तफ्तीश का हिस्सा बन रही है कि इसमें जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम उसको बिल्कुल शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालबा से इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान तालिबा को ब्लैकमेल करके जेवरात और नकदी भी ले चुके थे। मुकदमे के मुताबिक तालिबा को क्लास फेलो ने पहले दोस्तों के हमरा ज्यादती का निशाना बनाया, फिर वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा और सोने के जेवरात और कैश भी हथियाया गया। मुलजिमान ने शहर से बाहर ना जाने पर लड़की की वीडियो वायरल कर दी। मुलजिमान में अदनान, बिलाल जमान, वलीद और शेख अदील शामिल हैं। पुलिस बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जरा ये भी सुनिए कि बढ़ती हुई महंगाई के असरात क्या क्या हैं। बढ़ती महंगाई ने जहां आम शहरियों को शदीद मुतासिर किया, वहीं बच्चों के इस्तेमाल की अशिया, फीडर, डायपर और खिलौने भी वालिदैन की कुव्वत खरीद से दूर होते जा रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा गयास। महंगाई के असरात बच्चों की रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और खिलौनों पर भी सामने आने लगे। पैम्पर्स का पैकेट 3000 से 4000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। फीडर जो कि पहले 150 से 200 रुपए में दस्तयाब था, अब इसकी कीमत बढ़कर 500 से 600 तक जा पहुंची है। जबकि खिलौनों और बच्चों की दीगर अशिया जरूरिया भी आसमान से बातें कर रही हैं। ये खिलौना 1500 का लेके जाते थे, अब वही 5000 का हो गया। बच्चा वो बजट खड़ा है। पैम्पर तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, मैं 2500 का लेके जाता हूँ और वही जो 2500 वाला है ना वो इस टाइम 3400 का हो गया। दूसरी तरफ दुकानदार भी महंगाई के बाइस ग्राहक कम होने का रोना रोते दिखाई देते हैं। जो लोग लेके जाते थे खिलौने कम से कम 75-100% लेके जाते, अब लोग 25-30% में लेके जाते खिलौने। कस्टमर परेशान है, रेट सुन के चल जाते हैं, ना हम कुछ कर सकते कस्टमर के लिए, पीछे से बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। खरीदारी के लिए आए वालिदैन का कहना था कि रोज बरोज बढ़ती महंगाई से बाहर ना निकले थे कि बच्चों की चीजों के रेट बढ़ाकर बच्चों का हक भी उनकी दस्तरस से दूर कर दिया है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़। पाक फजाइया दुश्मन को एक बार फिर पीछे छोड़ने के लिए तैयार। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के दौर में भी पाक फजाइया को भारतीय फजाइया पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। पाक फजाइया 2030 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बेड़े में शामिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान और तुर्किया मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे तैयार करेंगे। आज़रबाईजान भी बाज़ाब्ता शराकतदार बन चुका।
तुर्क 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट रवा बरस रूल आउट हो चुका। पहली परवाज साल के आखिर में मुतवक्के है। दूसरी तरफ भारत का 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे का मंसूबा अभी तक कागजात में बंद है। भारत अब तक 4th जनरेशन लड़ाका तैयारा भी ठीक से नहीं बना पाया। भारतीय साख्ता 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे की फिजाइया में शमूलियत 2035 से पहले मुमकिन नहीं। और इंतजार खत्म। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां शुरू। खिलाड़ियों ने हम्बन टोटा में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। कोचेस की निगरानी में खामियां दूर की। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील टेस्ट के बाद वनडे फॉर्मेट में भी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुरआज़म। अगेन अपॉर्चुनिटी है कि अगर मुझे यहाँ पे चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं उसमें भी परफॉर्म करूँ और जो मेरी अच्छी फॉर्म चल रही है उसको आगे भी कैरी करूँ। वनडे क्रिकेट की अलग डिमांड्स है। मॉडर्न वनडे क्रिकेट आगे बढ़ रही है। कोशिश करेंगे उसके हिसाब से अपना गेम प्लान बनाऊं और उसके हिसाब से फिर अपने आप को जो भी स्किल अपनी ऐड करूं उसको जाके अप्लाई करने की कोशिश करूं। रिगार्डलेस के कोई भी मेरा रिजल्ट है, मैं उस चीज़ को, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी जो मेरी स्किल्स हैं उनको जाके बैक करूं और ग्राउंड में उसी तरह देने की कोशिश करूं ताकि मैक्सिमम जिसमें चांस ये होता है कि आपके अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।